My precious children of God, I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरी बहुमूल्य प्रभु की संतानों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को अभिवादन। Today we are going to meditate a beautiful verse from the Bible. आज हम बाइबल से बहुत ही सुंदर वचन पर मनन करने वाले हैं। Take your Bibles and turn to Psalm 61 verse 2. अपनी बाइबल में आप निकालिए भजन संहिता 61 वचन 2। It says, "From the end of this earth I call to you, when my heart is faint, lead me to the rock that is higher than I." मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चल। इस तरह ये कहता है। My friend, are you dejected and depressed in your life? मेरे दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में तिरस्कृत किए गए हैं, अपमानित किए गए हैं? Do you say that there is nobody to strengthen you or help you? क्या आप ये कहते हैं कि आपको बल देने के लिए, आपकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है? In the Bible we read about a man called Jonah, a man of God, and he had to go through many problems in his own life. बाइबल में हम परमेश्वर के जन योना के बारे में पढ़ते हैं और उसे भी अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं में से होकर जाना पड़ा। Once he disobeyed God's order or God's will and went away the wrong side. एक दिन उसने परमेश्वर की इच्छा, उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया और वो अपने जीवन में गलत मार्ग पर So गया। he had to be in the belly of the fish for such a sad thing. और ऐसी दुखद बात के लिए उसे वहाँ पर मछली के पेट में रहना पड़ा। When he was in the belly of the fish, he had to struggle. और जब वो मछली के पेट में था, बड़ी मुश्किल में पड़ा था। The digestive system of the fish started working. मछली की जो पाचन क्रिया है वो तो काम करने लग गई थी। Because of that, he had peculiar pain. और उसके कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था। And that time, और उस समय the belly of the fish, he cried unto the Lord. उस समय मछली के पेट में से उसने परमेश्वर को पुकारा। If you read Jonah chapter 2 verses 1 and 2, there we read like this. अगर आप योना अध्याय 2 वचन 1 और 2 पढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे। He received answer even though he was in the belly of the fish. हालांकि वो तो मछली के पेट में था, लेकिन उसने उत्तर पाया। The Lord heard his cry परमेश्वर ने उसकी पुकार सुन ली and he brought him out of the belly of the fish alive. और परमेश्वर ने उसे मछली के पेट में से जीवित बाहर निकाला। Yes, if you read Psalm chapter 5 verse 2, it says, David prays to the Lord, O Lord, give heed to the voice of my cry, my King and my God, for to you I will pray. भजन 5:2 में यहाँ पर दाऊद कहता है, मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दोहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। In the belly of the fish, Jonah prayed unto God. मछली के पेट में योना ने परमेश्वर से प्रार्थना की। He cried unto God. उसने परमेश्वर को पुकारा And the Lord heard his cry even then. और तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। The fish vomited him out of its belly. और मछली ने अपनी पेट में से उसे उगल दिया। If you read James chapter 5 verse 16, word of God says, the effective fervent prayer of a righteous man avails much. याकूब अध्याय 5 वचन 16 पढ़े तो ये कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। And Philippians chapter 4 verse 6 also says, be anxious for nothing, but in everything what you have to do, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. फिलिपियों अध्याय 4 वचन 6 ये कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। According to Psalm 65 verse 2, the Lord will hear your cry. भजन संहिता 65 वचन 2 के अनुसार परमेश्वर आपकी पुकार सुनेंगे। And as Jonah was vomited by the fish alive, you will also be out of all your problems. और जैसे मछली ने योना को जीवित उगल दिया, वैसे ही आप भी अपनी सारी समस्याओं से बाहर आएंगे। Even now we are going to look to God अभी इस समय हम परमेश्वर की ओर देखेंगे and cry out to Him. और उससे पुकारेंगे। He will remove all your problems. वो आपकी सारी समस्याओं को दूर He will do करेंगे। miracles to you. वो आपके लिए चमत्कार Do करेंगे। you believe that? क्या आप ये विश्वास करते Shall हैं? we pray? आइए प्रार्थना करेंगे। Our precious Heavenly Father, thank you, Lord, for the wonderful work you have done. In the Bible, we have
seen so many things, Father. हमारे स्वर्गीय पिता, आपके महान कामों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। बाइबल में ऐसे हम आपके बहुत से कामों को देखते हैं। Even now, those who are crying for the problems, Lord, bring them out of all the problems. प्रभु, इस समय जो अपनी समस्याओं में पुकार रहे हैं, उन्हें उनकी समस्याओं से निकालिए। Give them peace. उन्हें शांति दीजिए। Give them deliverance. उन्हें छुटकारा दीजिए। Hear their cry उनकी पुकार सुनिए and supply all the needs, oh Father. और उनकी सारी जरूरतें पूरी कीजिए पिता। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। We as a family are coming to Chhattisgarh. हम एक परिवार के रूप में छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। Now she is walking to pray for you at the Bastar Prayer Festival. कि आपके लिए बस्तर प्रेयर फेस्टिवल में आपके लिए प्रार्थना करें। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान। God who opens the windows of heaven. एक ऐसा परमेश्वर जो आसमान के झरोखे खोलकर Oh, much sorrow might have gripped you till this moment. बहुत सारे दर्द ने अभी तक आपको जकड़ा होगा, But God is resurrecting you from that sorrow right now. लेकिन अभी इसी समय दर्द से यीशु आपको छुड़ा रहा है। Julie, you are here. पूछिए जूली। You are saying, I am carrying a child in my womb. और आप कहती हो कि मेरे गर्भ में संतान है। मोर पेटरे गर्भ छे। The doctors are saying there are complications in the child's body even as the child is in the womb. और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जैसे ये बच्चा तुम्हारे गर्भ में है, उसके शरीर में कुछ तकलीफ है, ठीक नहीं है। वो बच्चा तो बहुत कमजोर है, कैसे हम पैदा करेगा कि नहीं बोल के डॉक्टर खुद बोले। Now Jesus heals the child which is in your womb, Julie. जूली, इस समय जो बच्चा आपके गर्भ में है, परमेश्वर उस बच्चे को चंगाई दे रहा है। ये है मेरा छोटा बच्चा अभिषेक। ओल्ड डॉक्टर दिनाकर प्रोफेसी किए थे। The Lord turns our sorrow into joy. प्रभु हमारे शोक को आनंद में बदल देते हैं। From the 8th to the 10th November. 8 से 10 नवंबर तक। जगह है धर्मपुरा ग्राउंड, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 0771 433 5600। Come as a family, let's pray together. आइए एक परिवार के रूप में एक साथ जमा हो और एक साथ प्रार्थना करें। Jesus will come and turn your sorrow into joy. यीशु आकर आपके दुख को आनंद में बदल देंगे।